Hello students, myself Rakesh Misra. This is the Heredity and Evolution part 3rd, and in this video lecture I will describe you some important concepts of genetics, and these important concepts are the genes, genetics, homozygous genotype, heterozygous genotype, allele or allelomorphs, dominant traits and recessive traits. One by one I will describe, and later if time remains then I will describe the different kinds of cross in the important concepts of genetics in this video lecture. So without delay time, let I introduce you the genes. Actually the genes are, this is the cells of our body. In previous video lecture I have described you what is genes. This is the part of our body. Suppose that this is the nucleus of the cell, not a cell. This is the nucleus of the cell. Inside the cell there is the DNA, and that DNA has a lot of segment, and each segment is known as genes, and that genes are the structural and functional units of genetics. So what is genetics? The study of functions and their inheritance, study of functions of genes and their inheritance into the next generation. There will be the genetics, the branch of biology that deals with the study of genetics, that deals with the study of genes, their function and their inheritance to the next generation, that is known as genetics. So genetics को यहाँ पे पहले genes को define कर दीजिए. Genes are the structural and functional units of inheritance. In previous video lecture I have described you few property of parents are transferred from one generation to another generation, and that property are known as inherited property, and that property are capable to transfer from one person to another person due to a specific portion of the DNA, and that portion is known as genes. So genes actually carry the information from one generation to another generation. Suppose that this is the human being, then the human being able to form the new human being. So the information from the one human being is transferred from one parent to their offspring through the very special part of DNA that is known as genes. So genes actually transfer the information from one parent to another parent, that is another offspring, that is one organisms to the next organism, one generation to the next generation. ठीक है, तो ये एक जनरेशन हो गया, ये दूसरा जनरेशन हो गया. So genes are the structural and functional units of inheritance. ये प्रोसेस क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस. इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में बेबी भी ह्यूमन बीइंग है? ये हेरिडिटी. तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रोसेस है, और ये इसकी यूनिट ट्रांसफर हो रही है. छोटे छोटे इसमें जीन्स है, ढेर सारे जीन्स, आंख का, नाक का, मुंह का, कान का, हर तरह का जीन्स है, वो ट्रांसफर हो रहा है. तो उसको कहेंगे उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल, वो जो यूनिट दिख रहा है जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर कॉपी इससे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? उसका जीन्स हो जाएगा. ठीक है, तो जीन्स के बारे में आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसके लिए एक बायोलॉजी का ब्रांच डिसाइड किया गया कि इसमें हम बायोलॉजी का एक फ्रेश ब्रांच बनाएं जिसमें हम सिर्फ जीन्स का, उसका मैकेनिज्म, उसका फिनोमिनन चेक कर लें, उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या है और उसके वेरिएशन के क्या रीजन है, ये सब का हम सिर्फ स्टडी करेंगे. और जनरेशन टू जनरेशन का एक चार्ट बना करके स्टडी करेंगे या क्रॉस करके स्टडी करेंगे. जैसे भी प्रैक्टिकल या थियोरेटिकल जैसे भी एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे भी उसका कॉन्सेप्ट होगा, सब एक बायोलॉजी के फ्रेश ब्रांच में होगा, और दैट ब्रांच क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स. सबसे पहले जीन्स के बारे में और मोर डिटेल जान लें. द जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल. Gregor John Mendel discovered the genes, but Gregor John Mendel do not give the term genes
उस पार्टिकुलर ट्रेट्स जो उस पार्टिकुलर रीजन्स को वो बता नहीं पाए कि क्या ऐसी चीज है जो एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो उसका ऑफस्प्रिंग भी पेरेंट जैसा हो जा रहा है, वो बता नहीं पाया, लेकिन ये बताया कि कुछ ना कुछ तो है और उसको फैक्टर बोले। सो द ग्रेगर जॉन मेंडल गैव द जीन्स एज अ फैक्टर, so gene was discovered by Gregor John Mendel but the name was as a factor, जो नेम दिया जीन्स को बोला फैक्टर। सो फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। बाद में इसको जीन 1909 में किसने दिया, द नेम ऑफ जीन इज गिवन बाय विल्हेल्म जॉनसन, नीचे लिख देना, जगह नहीं आगे लिखना तुमको, जॉनसन, विल्हेल्म जॉनसन। कब दिया, 1909। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द नेम ऑफ जीन वाज गिवन बाय विल्हेल्म जॉनसन इन 1909 बट द जीन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, लिसन केयरफुली, these are some important part of the genes and the genetics. Listen carefully. Now back to the genetics. Genetics के लिए यहाँ थोड़ा सा जगह है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। The branch of biology that deals with the study of genes, their process of inheritance called genetics. तो जेनेटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, देयर प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जेनेटिक्स। तो यहाँ जेनेटिक्स भी क्लियर हो गया और जीन्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जीन्स का डिफिनेशन, जीन्स को किसने डिस्कवर किया था, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें जीन्स की स्टडी की जाती है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। और कभी कभी जेनेटिक्स का फादर पूछता है कि हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो नोट कर लीजिए, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर यहाँ पे लिख रहा हूं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नोट कर लीजिए, ग्रेगर जॉन Mendel. More detail about Gregor John Mendel, their experiment and their principle will be discussed in next video lecture. But keep in mind that was very important events even when the genes and their functional mechanism was discovered by the Gregor John Mendel through the practical and theoretical application. Now back to the homozygous and heterozygous genotype. पहले इसको मैं इरेज कर दूं और इसमें से कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया है उसको मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको आप नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, जीन्स जेनेटिक्स हो गया, ठीक है। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल। कभी कभी नेम किस तरह, जीन्स का नेम जैसे विल्हेल्म जॉनसन ने दिया था वैसे जेनेटिक्स का नेम भी एक साइंटिस्ट ने दिए थे। नोट करो इसको, विलियम बैटसन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए है, 12 लेवल के स्टूडेंट के लिए। 10th लेवल वाले स्टूडेंट लिख लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, एग्जाम में ये उनके नहीं आता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, 10th बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। जीन्स कहाँ है, जीन्स हमारे बॉडी में है। बॉडी में कहाँ है, सेल में है। सेल में कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ है, क्रोमोसोम्स और उसके डीएनए पे। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्रोमोसोम्स और डीएनए हमेशा पेयर में होते हैं। सपोज दैट मैं ये बात करूं कि ये एक क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों के जीन्स, जैसे हमारे एक जीन्स, देखो जीन्स की पेयर कैसे बनते हैं मैं बता दे रहा हूं।
जीन्स के पेयर कैसे बनते हैं उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेयर जीन ये हो गया, दूसरा पेयर जीन ये हो गया, तीसरा पेयर जीन ये हो गया, ठीक है, चौथा पेयर ये हो गया। तो जीन्स के ढेर सारे पेयर, जैसे यहाँ पे अगर टालनेस का जीन है, किसी कोई आदमी टाल है और कोई ड्वार्फ है, ठीक है, तो ये टाल जो दिख रहा है, टाल, ये टाल उसके जीन की वजह से, तो टाल को जो टाल लिख दिया तो जीन टाल अगर जो बोल दिया यहाँ पे लिखा हुआ टाल ना, तो इसको मैं मुंह से बोल रहा हूँ टाल, तो टाल जैसे किसी को बोल दे रहा हूँ दिमाग में वो लंबा होगा, लेकिन जीन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिमाग में आ रहा, जीन कैसा होगा। बायोलॉजी में उस जीन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, क्लियर है ना। जीन्स जो टाल का होगा वो कैपिटल लेटर से, और जो ड्वार्फ का होगा उसको स्मॉल लेटर से। ऐसे ही जीन्स जो अगले जनरेशन में, जैसे मम्मी या पापा में से कोई टाल है और कोई ड्वार्फ है, इसी में से एक मेल और फीमेल ले लेते हैं, इसमें से मान लो ये टाल है, ड्वार्फ है, और अगले जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होगा, जैसे अगर कोई बच्चा टाल हो जा रहा है अगले जनरेशन में, तो बोलेंगे टाल क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो जा रहा है आपको, डोमिनेंट ट्रैट्स, द ट्रैट्स दैट अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन, द ट्रैट्स दैट अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रैट्स। लिख लीजिए कॉपी में, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ट्रैट्स दैट अपीयर्स just in next generation, just in next generation called dominant traits, dominant traits। और recessive traits क्या होगा, traits that remain hidden in next generation। जैसे आप एक प्योर टाल ले लीजिए, तो हमेशा जब एक फिनोटाइप जो दिखता है किसी का कैरेक्टर का, जैसे अगर कोई टाल है तो दिख रहा है तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं, अगर उसके जीन का कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, कहाँ है, तो वो जीनोटाइप होता है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उसको मैंने बताया था कि कैरेक्टर, द विजिबल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज फिनोटाइप। तो इसका विजिबल कैरेक्टर क्या है, टाल, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। और ये क्या है, ड्वार्फ, ड्वार्फ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फिनोटाइप। तो ये बोलेंगे कि फिनोटाइप ऑफ ड्वार्फ, फिनोटाइप ऑफ द पर्सन बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। सो फिनोटाइप ऑफ पर्सन बी इज ड्वार्फ एंड फिनोटाइप ऑफ पर्सन ए इज टाल। अब सवाल आता है कि जीनोटाइप, तो एक जीन लिखा है कैपिटल टी, तो मैं बताया हूं कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, तो दूसरा भी, जैसे कैपिटल टी यहां हो गया तो दूसरा टी यहां होगा, वो भी कैपिटल में होगा। कब, जब ये प्योर टाल होगा। अब प्योर टाल भी होते हैं, हाइब्रिड टाल भी होते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग आपको रूल समझा दिया जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये टाल है, तो इसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी होगा, और ये स्मॉल टी क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो जाएगा। तो ये जो जीनोटाइप, ये जो दिख रहा है, जो आप, जैसे मैं टाल हूं तो मेरे अंदर कहाँ टी लिखा हुआ है, कहाँ कैपिटल टी लिखा हुआ है, या कोई ड्वार्फ हो तो उसके बॉडी में कहाँ स्मॉल टी कहाँ खोजोगे, तो वो एक सिंबल है, जीन पे भी नहीं लिखा होता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वाटर का फॉर्मूला लिखना है, तो वाटर पे कहीं H2O नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, हवा में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं लिखा होगा, वो अपने से बनाया गया फॉर्मूला है। तो ऐसे ही ये हाइपोथेटिकली पढ़ाई लिखाई के लिए तो ठीक है कि पढ़ाई लिखाई के लिए कोई दिख रहा है आदमी टाल है, लेकिन अगर उसको जेनेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एक लेटर में हम उसकी टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, एंड दैट लेटर इज नोन एज जीनोटाइप। तो ये पेयर ऑफ जीनोटाइप दिख रहा है और इसका एक जीनोटाइप भी दिखता है, तो ये अभी पेयर ऑफ जीनोटाइप है, पेयर ऑफ जीनोटाइप। और ये क्या है, इसका स्मॉल टी पेयर ऑफ जीनोटाइप। तो एक चीज और लिखना मत भूलिए, ये ड्वार्फ दिख रहा है ना, तो दोनों पेयर, दोनों स्मॉल टी है, तो इसको बोलेंगे प्योर ड्वार्फ। केवल किसको बोलेंगे, फिनोटाइप कैरेक्टर को बोलेंगे प्योर ड्वार्फ, ठीक है। और ये कैपिटल टी है, तो ये क्या है, प्योर टाल है। क्यों प्योर टाल है भाई, कोई टाल दिख रहा है तो उसको प्योर टाल नहीं बोल सकते जब तक कि उसके जेनेटिक स्टडी पे नहीं जाओगे। तो जीन्स को जब देखोगे तब समझ में आ रहा है, कैसे पता करेंगे कौन प्योर टाल है कौन अनप्योर टाल है। अगर दोनों जीन्स कैपिटल में है,
या दोनों जीन्स स्मॉल में है तो बोलेंगे प्योर टाल, ठीक है, या प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ पे प्योर टाल प्योर ड्वार्फ तो मुंह से बोल दिया, लेकिन जीनोटाइप के लिए क्या बोलेंगे? होमोजाइगस टाल और हेट्रोजाइगस टाल, ठीक है। तो टाल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, माने एक ही जीन इनफ है अगले जनरेशन में किसी को बड़ा बनाने के लिए। दूसरा जीन अगर स्मॉल टी है तो उसका कोई रोल प्ले नहीं होता, यानी कि पर्सन ये भी टाल होगा जिसका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और पर्सन ये भी टाल होगा जिसका कैपिटल टी होगा। जीनोटाइप की बात करो, किसी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो भी टाल होगा। रीजन क्या है? सिंगल जीन इज इनफ टू फॉर्म द टाल कैरेक्टर्स इन नेक्स्ट जनरेशन। दो जीन है तो कोई बात नहीं, तभी उतना ही टाल होगा, लग्गा भर का नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो जाएगा? वो टाल, और कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ हो जाएगा। तो यहाँ टालनेस के दो कैरेक्टर्स, ड्वार्फ नहीं हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी टाल होगा। तो टालनेस के लिए दो कैरेक्टर, दो तरह के जीनोटाइप मिल गए। एक ऐसा हुआ कि दोनों कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो इस तरह के टाल को बोलेंगे होमोजाइगस टाल। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस टाल। और इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस टाल। तो ये जीनोटाइप दो तरह का होता है, होमोजाइगस जीनोटाइप और एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप का मतलब होगा, लिख लीजिए कॉपी में, व्हेन, इसको मैं मिटा रहा हूं, वही जो है दिक्कत कर रहा है, मैं दिखाने वाला था दो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन इक्वल लेटर यूज्ड टू एक्सप्रेस जीनोटाइप, यही लिख रहे हैं जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल टी है, कैपिटल टी कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल जेड है, ठीक है। ये सब क्या हो गया? होमोजाइगस का हो गया। और हेट्रोजाइगस का क्या हो जाएगा? व्हेन unequal letter used to express the genotype। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जेड स्मॉल जेड। तो ये भी टाल होगा, ये टाल का होगा या ड्वार्फ का, मतलब ये किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का होगा तो यही जीन डिसाइड करेगा, कैपिटल वाला ये जीन डिसाइड करेगा कि वो कैसा होगा, ठीक है। जैसे बी फॉर अगर ब्राउन है, कोई पी का प्लांट है वो ब्राउन है, या कोई ट्री है वो ब्राउन कलर का है, तो अगले जनरेशन में अगर वो ब्राउन हो रहा है तो इसी एक जीन की वजह से हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको जीन, जेनेटिक्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील्स एंड एलिलोमार्फ्स जो है मैं समझा दे रहा हूँ, एलील्स और एलिलोमार्फ्स क्या होता है, ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। देखो, एक किसी कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर्स क्या है? लेंथ ऑफ प्लांट। अगर प्लांट के एक कैरेक्टर की बात करें, टाल और ड्वार्फ दोनों को अगर किसी एक वर्ड से बोलेंगे, जैसे किसी कोई पर्सन है वो टाल भी है, उसके घर में ड्वार्फ भी है, तो उसके लिए हम एक वर्ड क्या बोल सकते हैं? लंबाई कैसी है? तो कोई बोलेगा टाल है, कोई बोलेगा ड्वार्फ है। दोनों आदमी बोल सकते हैं, जो टाल होगा वो भी अपनी लंबाई जानता होगा, ड्वार्फ होगा। तो ये जो वर्ड मुंह से बोल रहे हो ना, यही एक पार्टिकुलर ट्रैट्स को डिफाइन कर रहा है। तो ट्रैट्स जो दिखते हैं, ये जो ट्रैट्स दिखते हैं, एक ट्रैट्स के बहुत सारे जीनोटाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी बताया, जैसे ट्रैट्स फॉर टाल, ट्रैट्स फॉर लेंथ की मैं बात करूं, टाल के या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, ठीक है। ट्रैट्स फॉर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, स्मॉल टी होगा। ये बात अलग है कि ये हो जाएंगे प्योर टाल, ये हो जाएंगे हाइब्रिड टाल या हेट्रोजाइगस टाल, और ये हो जाएंगे ड्वार्फ। लेकिन होंगे सब लेंथ को ही, सिर्फ लेंथ को ही सिग्निफाई कर रहे हैं, सब लेंथ को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तुमको देख रहे हो कि कैरेक्टर्स एक ही है, लेंथ ऑफ प्लांट्स, लेकिन उसके ट्रैट्स कितने, उसके जो है जीनोटाइप कितने हैं? 3। तो वेरियस फॉर्म ऑफ जीन्स के अलग अलग फॉर्म हो गए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स एंड देयर जेनेटिक पेयर्स आर नोन एज एलील्स। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो दिख रहा है मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स, ठीक है। उससे पैदा होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया,
एलील्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स लिख सकते हैं कॉपी में, डिफरेंट यहां पे लिख दे रहा हूं कॉपी में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स कॉल्ड एलील्स। आगे बहुत सारे एलील्स पढ़ने को मिलेंगे। एग्जाम्पल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर लेंथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, फॉर लेंथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। आई होप आपको वीडियो ये क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। अगर इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास या कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेंडल्स की इनहेरिटेंस यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।